और चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं जेएनयू के वाइस चांसलर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। About his whereabouts. As soon as this incident came to our notice, the wardens met and they investigated this incident. As soon as this information was passed on to the Dean of Students, the Jawaharlal Nehru University contacted the police. We are in regular touch with the police. Every day we are writing to them to expedite the process because all of us are concerned about the whereabouts of Najib Ahmad. We hope that he will come back to JNU as soon as possible through you. I would like to appeal to Najib Ahmad, wherever you are, please come back to JNU and continue your academic activities with no fear. In fact, a couple of days ago, we have also appealed to Najib through media as well as the website, requesting him to come back. As you know, we have been confined illegally in the administration building since yesterday from 2:30 p.m. We had a series of meetings with the students explaining the whole the number of steps that we have taken in search of the missing student. However, the students are very adamant. They are not letting us go out of this building. They said we have several demands and the administration has to concede those demands. One of the demands that they have made is that you should contact the police, which we have already done. We have written several letters to the police and many of my officials are in regular touch with the top police officials to know the progress of the search for Najib Ahmad. The other demand students have made is that this entire incident should be investigated. The Chief Proctorial Office has already formed a committee and the committee is investigating the whole incident. If anybody is found guilty, we have assured the agitating students that the guilty will be punished and the entire inquiry process will be expedited. Students also said we have to make an appeal to Najib. We have already made an appeal to Najib through the media and also the website. In spite of our best efforts to search for Najib Ahmad, the students are relentless and they are blaming that we are not doing enough, which is a complete lie. Students are also spreading news. Some of the students, agitating students, saying that they have not blocked the admin block. As many of you might have noticed here, there are hundreds of students who are not letting us go out of this building. Since last night, many of my colleagues have fallen sick. We have a couple of them who is a diabetic patient who has a high blood pressure. We simply slept on the floor. We had no food. Students also are spreading lies saying that they have sent food and water inside, which is absolutely a lie. We have tried every possible means to convince the students that we have tried our best to locate Najib Ahmad. However, they are not relenting at all and they are resorting to this kind of illegal means. We cannot be coerced by this kind of illegal means. The university has to be run in a proper manner. The academic activities should not suffer, and we again appeal to the students not to resort to this kind of illegal activities and affect the functioning of the university. I would also like to tell you that today we have a very important meeting. It is the academic council meeting where some very important decisions of the university are discussed. The meeting is scheduled at 2:30. We will be leaving to the academic council venue at around 2:15. We would like to run this university in the normal way. Thank you. कहना पहली चीज तो ये कि एक एफआईआर आप लोगों की तरफ से भी लॉन्च हो। दूसरी नंबर चीज ये कि जो 9 छात्र आरोपी हैं जो हॉस्टल में रह रहे हैं उनको पहले बाहर भेजा जाए क्योंकि इंक्वायरी प्रभावित हो। इन दोनों पॉइंट पे क्या? Right. The first point is that when the student was in the hostel itself, the mother contacted the student. She spoke to him over phone, and by the time the student came here, he was not in the hostel. So as any other mother, she was agitated and she contacted the police immediately, and we also contacted the police. We wrote a letter to them, but by then they said an FIR has already been filed based on the complaint of the mother,
and our letter also is used as a follow-up complaint, and after that we have written several letters to the police. So it is not true at all to say that we have not complained to the police. If you want, we will give you copies of the letters that we have written to the police. And as far as punishing the culprits who are involved in this incident, please understand that university has its own procedure of inquiry. The witnesses have to be called, the depositions have to be taken, and after analyzing the whole thing, only you can give out the punishment to the students. So therefore, the inquiry process is on. The inquiry process will be expedited and guilty will be punished. सर अभी तक आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया जिस तरह से आपको बंधक बना हुआ है आपको अभी यहाँ We are, see, this is a university run in a democratic manner. We value debate and discussion. That is the reason why we had several rounds of discussions with the students to convince that the university is sincerely working to locate Najib Ahmed. If all our efforts fail, if we continue to be confined like this, as I said, at 2:30 we have the academic council meeting and we have to leave this venue and go to another venue, and if we are prevented from doing our duty, we will have no other option but take a suitable action. लेकिन सर अभी तक पुलिस तो आपने सुना जेएनयू के वाइस चांसलर को, उनका यह कहना था कि इस पूरे मामले में स्टूडेंट अब बाधा ना डाले कामकाज में, नजीब वापस यूनिवर्सिटी लौटेंगे। पुलिस को इस बारे में इत्तला की गई है, जानकारी दी गई है, चूंकि आरोप यह लगाया गया था कि स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के जो छात्र हैं नजीब अहमद, वो लापता हैं और उसके बारे में जेएनयू प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। छात्र हमारी बात मानने को तैयार नहीं, यह भी कहना वाइस चांसलर का, और उनका यह भी कहना था कि आज 2:30 बजे एकेडमिक काउंसिल की एक अहम बैठक होनी है और वहां जाने से अगर रोका गया इन अधिकारियों को, जेएनयू के वाइस चांसलर को, तब फिर कोई कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। ये तस्वीरें हम आपको उसी प्रशासनिक भवन के बाहर की भी दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार स्टूडेंट्स डटे हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और यहीं पर वाइस चांसलर को तथाकथित तौर पर बंधक बनाकर रखा गया है। और इन छात्रों का आरोप है कि जिस तरीके से छात्र नजीब अहमद गायब हुआ, उस बारे में वीसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। प्रशासन जो वहां का है जेएनयू का, उसने कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि जेएनयू के वाइस चांसलर का यह कहना है कि इस बाबत पुलिस को जानकारी दी गई है और लगातार इस स्टूडेंट की तलाश जारी है। उनसे अपील भी की गई है कि अगर नजीब अहमद खुद कहीं चले गए हैं तो वापस लौट आएं। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जेएनयू के जो वाइस चांसलर हैं उन तक लोग आ जा रहे हैं, मीडिया के लोग वहां पर पहुंचे, वो मीडिया के लोगों से मुखातिब हुए, लेकिन वाइस चांसलर का यह कहना कि उन्हें यहां से निकलने नहीं दिया जा रहा है। आज दोपहर 2:30 बजे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक में उन्हें हिस्सा लेने के लिए जाना है, एकेडमिक काउंसिल की बैठक होनी है और इस बैठक में उन्हें अगर नहीं जाने दिया गया छात्रों की तरफ से, तब कोई कार्रवाई भी की जा सकती है जेएनयू प्रशासन की तरफ से। इस तरफ भी इशारा किया है जेएनयू के वाइस चांसलर ने। तो 14 अक्टूबर को हॉस्टल में झड़प हुई थी, जिसमें बताया जाता है कि नजीब अहमद को पीटा गया था और उसी से ये छात्र नाराज हैं। इस पूरे मामले में उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। ये तस्वीरें हम आपको वहीं की दिखा रहे हैं, प्रशासनिक भवन के आसपास की तस्वीर है। जेएनयू में जो ये ब्लॉक है उसके बाहर ये छात्र लगातार डटे हुए हैं एडमिन ब्लॉक के सामने और इनकी यही मांग है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, नजीब अहमद के बारे में पता करवाया जाए। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में अब प्रयासरत है। जेएनयू के वाइस चांसलर का भी ये कहना कि उनकी तरफ से भी, प्रशासन की तरफ से भी जानकारी दी गई है। और चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं रविकांत के पास, एबीपी न्यूज संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविकांत, और क्या ताजा जानकारी आपको मिल पा रही है? देखिए, जो एक तरीके का डेडलॉक है वो लगा हुआ है और वीसी का कहना है कि हमने अपनी ओर से सारे कदम उठाए हैं ताकि नजीब अहमद की वापसी हो सके। नजीब अहमद को ये अपील भी की है कि वो सुरक्षित है और वापस आ सकता है। पुलिस के भी लगातार संपर्क में है जेएनयू प्रशासन, लेकिन बावजूद इसके जो छात्र हैं वो घेर करके बैठे हुए हैं और बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। हमारी भी छात्रों से जो बात हुई उसके अनुसार छात्रों का कहना है कि अगर वाइस चांसलर जाना चाहते हैं तो हमारे ऊपर से होके गुजरना उनको पड़ेगा। यानी इस तरह का माहौल अभी भी बना हुआ है। जो वाइस चांसलर हैं उन्होंने पत्रकारों से ये कहा है कि हम छात्रों से ये अपील कर रहे हैं कि वो अपना ये प्रदर्शन और धरना वापस लें,
क्योंकि जो कुछ भी कानूनी रूप से कदम उठाए जा सकते हैं वो जेएनयू प्रशासन लगातार उठा रहा है, और जो रवैया स्टूडेंट्स का है उसकी वजह से जो एकेडमिक काम है जेएनयू का वो बाधित हो रहा है। खास बात जो वाइस चांसलर ने कही वो ये कि अगर स्टूडेंट्स बाज नहीं आएंगे तो उनको मजबूर होकर के कोई ऐसा कदम उठाना पड़ेगा जो कि पुलिस की मदद से होगा। चलिए, शुक्रिया रविकांत इस जानकारी के लिए। आपका इस खबर पर आप नजर बनाकर रखें। ये 3 तस्वीर हमारे दर्शक के सामने, इन तस्वीरों के जरिए ये पूरा घटनाक्रम आप समझ सकते हैं। छात्रों का प्रदर्शन अभी भी जारी है, 21 घंटे से ये बंधक संकट जारी है और जो छात्र लापता हैं उनकी तलाश भी इस बीच जारी है। अकबर चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप जेएनयू छात्र संघ से जुड़े रहे हैं। अकबर चौधरी जी, आपने अगर सुना हो, जेएनयू के वाइस चांसलर आपसे कुछ ही देर पहले मीडिया से मुखातिब हुए, उनका यह कहना था कि आप लोग इस प्रदर्शन को खत्म करें, जिस कार्रवाई की आप लोग मांग कर रहे हैं वो कार्रवाई की जा रही है, पुलिस को जानकारी दी गई है। देखिए, छात्र संघ और जेएनयू के आम छात्र इस धरने पर बैठे अपनी इच्छा से नहीं बैठे हैं। आज 6ठा दिन है, हमारे बीच का एक छात्र नजीब 6 दिन से गायब है और हमें तकलीफ है। हमें तकलीफ है इस बात की कि जब हमारे माँ बाप हमें जेएनयू में पढ़ने के लिए भेजते हैं और जो वाइस चांसलर जिन्हें हमारी गार्जियन की भूमिका में होना चाहिए था, वो ऊपर एसी कमरे में बैठ के निगोशिएशन के लिए हमें बुलाते हैं और ट्वीट करते हैं कि हमें बंधक बना रखा है। इतना इनसेंसिटिव रवैया है वाइस चांसलर साहब का कि वो बोल रहे हैं बंधक बना रखा, अंदर आने जाने नहीं दे रहे हैं। हमने उनसे कई बार रिक्वेस्ट किया, सर रजिस्ट्रार साहब डायबिटिक पेशेंट है, उनको फौरन जाने दिया जाए, हम उनको एकदम नहीं रोक रहे हैं। हमने किसी को बंधक नहीं बनाया है, वो इसी कमरे में बैठे हैं, अंदर हैं, खाना पीना पहुंच रहा है, हम बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन का एक सिंपल डिमांड है कि नजीब को ढूंढने की दिशा में सर ठोस कार्रवाई करिए। उसमें हम कह रहे हैं कि जिन लोगों ने नजीब को पीटा, जिन्होंने साथ मार पिटाई नहीं की, तो वाइस चांसलर ये कह तो रहे हैं, आप लोगों को आश्वासन दे तो रहे हैं कि कार्रवाई की जा रही है। 2:30 बजे उन्हें एक बैठक में भी जाना है, एकेडमिक काउंसिल की बैठक में, क्या आप लोग जाने देंगे? वो जो करना चाहते हैं वो करें, हम उनको रोक नहीं रहे हैं, लेकिन हम ये जरूर कह रहे हैं कि नजीब को वापस लाने की दिशा में अगर एक सिक्योर एनवायरनमेंट आप कैंपस में नहीं प्रोवाइड करेंगे तो वो कैसे वापस आएगा? वो पिटने के बाद गायब हो गया। अगर जिन छात्रों ने उसको पीटा उस पर अगर आप कोई मिनिमम कार्रवाई भी नहीं करेंगे, उनको सस्पेंड भी नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो वो कैसे सिक्योर महसूस करेगा वापस आने के लिए? छात्र ये बात अगर वाइस चांसलर से बोल मतलब आपका यह कहना है कि नजीब अहमद के मामले में जेएनयू प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है, जिन लोगों पर आप आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें पीटा गया, उनके साथ बदसलूकी की गई, उनके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई? जो भी कार्रवाई है नाकाफी है, एकदम नाकाफी है। ऐसे समय में आप कैसे अपेक्षा करेंगे कि वो व्यक्ति सिक्योर महसूस करेंगे अपने कैंपस से वापस आओ जब वो सारे छात्रों इसी हॉस्टल में मौजूद हैं? और वाइस चांसलर साहब इतने समय से बोल रहे हैं छात्र बंधक बनाए हुए हैं। बंधक होने का मीनिंग क्या? हम बाहर खड़े होकर सिर्फ प्रदर्शन मात्र कर रहे हैं जी, बहुत डेमोक्रेटिकली। ये एक गेट खुला हुआ है, सारे कर्मचारी अंदर कैसे पहुंच रहे हैं? ठीक है, बिल्कुल छोटे में जवाब दीजिएगा। अगर जेएनयू के वाइस चांसलर 2:30 बजे की बैठक में जाना चाहते हैं, एकेडमिक काउंसिल की बैठक में, तो आप लोग उन्हें जाने देंगे वहां से? हम अपना प्रदर्शन उनके सामने जारी रखेंगे जिस तरीके से एक लोकतंत्र में नहीं, प्रदर्शन जारी रखेंगे क्या मतलब? क्या आप उन्हें रोकेंगे या जाने देंगे वहां से? एकेडमिक काउंसिल की बैठक में जाने के लिए देंगे उन्हें? वो जाए वहां पर, हम उनको नहीं रोक रहे हैं, हम किसी अकादमिक कार्य को नहीं रोक रहे हैं। चलिए, शुक्रिया इस बातचीत के लिए अकबर चौधरी आपका। और इस पूरे मामले ने अब एक नया रंग ले लिया है, राजनीतिक रंग ले लिया है। एबीवीपी का क्या कुछ कहना है इस पर, वो भी आपको सुनवाते हैं। और सौरभ हमारे साथ जुड़ गए एबीवीपी से। सौरभ, अब आप लोगों का क्या अगला कदम होगा? क्योंकि जो छात्र वहां प्रदर्शन कर रहे हैं उनका यह कहना है प्रदर्शन तो जारी रखेंगे आगे भी। देखिए, ये कोई प्रदर्शन नहीं, ये लोग मात्र एक नाटक कर रहे हैं और पूरा जिस तरीके से माहौल क्रिएट कर रहे हैं, एक कम्युनल रंग दे रहे हैं कैंपस में। लगातार यहाँ पे कॉमन छात्र को या जो इनके विरोध में है उनको ये दौड़ा के मारने की कोशिश कर रहे हैं। कल इन्होंने वाइस चांसलर की और जितने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर हैं उनकी बीवियां गई थी त्योहार के पे उनको अंदर खाने पीने के लिए, लेकिन उनको भी इन्होंने मार के भगा दिया है। तो एक देख लिए कि ये एकदम भयानक स्थिति पैदा कर दिए हैं। और मैं अगर सीधा बोलूं तो जो नजीब है वो इन्हीं लोगों ने कहीं ना कहीं छिपा के और एक पूरे मुद्दे को ये पॉलिटिसाइज कर रहे हैं और ये यूपी चुनाव बहुत ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं। सौरभ, आपका ये कहना है कि नजीब अहमद गायब नहीं हुए बल्कि उन्हें गायब करवाया गया है और ये सब कुछ साजिशन किया जा रहा है, ये आरोप आप लगा रहे हैं? जी हाँ, क्योंकि 9 फरवरी के बाद जिस तरीके से उमर खालिद और अनिर्बान को पूरी पुलिस भारत में खोज रही थी और यहीं के प्रोफेसर के घर में मिला था, तो मुझे पूरा शक है कि यहीं के प्रोफेसर के घर में या यहीं के हॉस्टल में उसे कहीं छिपाया गया है और ये लोग पूरे उसके आड़ में पूरा पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। जिस तरीके से कल रात में आप देखे होते, ये लोग दौड़ा दौड़ा के हिंसक हुए हैं। जिस तरीके से एक आतंकवादी क्या करता है किसी भी एक जोन में, उस तरीके से आतंकवादी की तरह वहां पर पेश आ रहे थे और ऐसी स्थिति हो गई थी कि इनके सामने कोई जाने के लिए डर रहा था।
लेकिन सौरभ, इन लोगों का तो यह कहना है कि नजीब अहमद के साथ बदसलूकी की गई, मारपीट की गई, अब वो गायब है, तो क्या जेएनयू प्रशासन उसे ढूंढने में मदद ना करे? देखिए, नजीब अहमद के लिए सब कंसर्न है, और एज ए एबीवीपी यहाँ पे कार्यकर्ता होने के नाते, एक छात्र होने के नाते मैं भी कंसर्न हूँ जितना कि वो लोग कंसर्न है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब 14 अक्टूबर की रात में सारा फैसला ले लिया गया था, जेएनयू के जो कि आयशा के वहाँ पे प्रेसिडेंट हैं, उनका भी साइन है, जो जितने भी वार्डन है उनका भी साइन है, वहाँ के सीनियर रेजिडेंट्स का साइन है। एक कमेटी ने जब फैसला ले लिया, नजीब ने खुद अपने आप को स्वीकार किया। चलिए, शुक्रिया सौरभ शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत के लिए। एबीवीपी जो कि बीजेपी की छात्र इकाई है, उसका यह कहना, ये सब कुछ साजिशन किया जा रहा है और दरअसल नजीब अहमद गायब नहीं हुआ, बल्कि उसे गायब करवाया गया है जानबूझकर इस विवाद को आगे बढ़ाने के लिए। यह सीधा आरोप लगाया गया है बीजेपी की छात्र इकाई एबीवीपी की तरफ से।